Let us read the scripture from Psalm 41:2. सब अपनी अपनी बाइबलें Some Bibles, the directors of ज़बूर 40 some Bibles, this is verse 1, is verse 2. But when I use my Bible, ESV, it's 1. Let me read it in English. I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the mire, and set my feet upon a rock, making my steps secure. Amen. Now I will read in Urdu. ज़बूर उसका 40 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 2 आयत तक। मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माउल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गहरे और दलदल के कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश मुकाम की। Amen. And today Pastor Celestine, he will going to share with us today title Waiting for Lord with Patience. कि हमें Okay. Let me just say, I'm going to share the word of God, not my words. I am going to share the word of God, not my words. आज का जो खुदा का कलाम है वो मेरे अपने अल्फाज नहीं है। But before sharing, let me tell you my words. Before sharing, let me tell you my words. खुदा का कलाम शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने अल्फाज में आपको बताना चाहता हूँ। It's a little bit a problem to some of us here. It will be a problem to some of us here. शायद किसी को मेरी बातें समझ आए और शायद किसी को मेरी बातें समझ ना आए। I grew up in Roman Catholic Church. मैं रोमन कैथोलिक चर्च में खानदान में पैदा हुआ It's where I did all my studies. और मैंने अपनी जो स्टडी उनके मुतालिक की And this man was very good to me. और वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। When the priest is teaching or preaching, जब फादर पैगाम सुनाते या कुछ सिखाते all people pay attention. कि वो सब अपना ध्यान जो है वो फादर जी की तरफ लगाते। If you try to disturb a bit, he calls you upon your name. He calls your name. अगर कलाम के दौरान He will rebuke you. अगर कोई हिलता है या कोई भी डिस्टरबेंस पैदा करता है तो वो फौरन उस इंसान का नाम लेकर उसको बुलाते थे। Even in my church home, it's the same. और जहाँ पे मैं चर्च जाता हूँ वहाँ पे भी सेम सिस्टम है We respect the time of sharing the word of God. कि जब खुदा का कलाम होता है या खुदा का बंदा आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करता है तो हमें हिलना या उठकर बाई जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस टाइम पर हमें ध्यान लगाना है कि खुदा हमसे क्या आज कलाम या क्या बात हमें सिखाने को है। That is how I grew up. Chongqing students know very well. If I am preaching, they are old, but I can call you. What are you doing? I can just call your name and say something. They know. Chongqing students know me when I'm preaching. I'm serious. I can, if you disturb a bit, I call you. And I say, oh, come here and just preach. Do what I was supposed to do. तो पास्टर सेलेस्टीन कहना चाह रहे हैं कि जब
मैं खुदा का कलाम शेयर करूं तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम है खुदा के लिए। तो हमें अपना पूरा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगाए। I'm going to use only between 15 minutes and 20 minutes. Please give me my time. Pay attention. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट लूंगा, जो आज का कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। I know if I call your name, you will hate me, but no problem. कि मुझे पता है अगर कलाम के दौरान अगर आप उठते हैं या कुछ बोलते हैं, मैं आपका नाम पुकारूंगा और वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। Praise God, because we are going to pay attention. आमीन। It's my second time to preach the word of God. ये मेरा दूसरा मौका है कि मैं खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूँ In this church. इस चर्च में ये मेरा दूसरा मौका है। First time I preached on Friday worship. पहली दफा मैंने जुम्मे की रात को खुदा का पैगाम शेयर किया था। Today it's my first time to preach on Sunday. और ये पहला इतवार है और पहली दफा इस इतवार में मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ। I give thanks to God for this occasion I was given to share His word. मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आपके साथ बयान कर सकूँ। आमीन। Last time I preached about how to live the life of integrity. लास्ट जो मेरा पैगाम था कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुर्बत या मुसीबतों से गुजार सकते हैं। I gave many definitions of integrity. I gave many definitions of integrity. हाँ, सॉरी, कि हमें ईमान के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। One of them, integrity, is who you are when nobody is seeing you. जो पहली चीज है वो कि आप कौन हैं, who you are, कि आपने जानना है कि मैं कौन हूँ। It means a whole person, not divided person. कि इसमें एक इंसान है और वो इंसान किसी हिस्से में नहीं बांटा हुआ। How you can live the life of integrity in problems, suffering, in all the lives you pass through. आप अपनी जिंदगी कैसे एक पुख्ता ईमान के साथ या कैसे खुदा पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। Back to the scripture of today, we are going to share how you can still live this life of integrity in hard situation. आज का जो पैगाम या आज का जो खुदा के अल्फाज में शेयर करने को हूँ वो भी कुछ इस तरह से हैं कि हम अपनी जिंदगी खुदा में रह के कैसे गुजार सकते हैं। मुसीबतें जब आती हैं हम उन्हें कैसे फेस कर सकते हैं। The title of today is Waiting for the Lord with Patience. आज का जो टाइटल है वो है कि हमें सब्र करना है और अपने आप को तहम्मुल खुदा पर ईमान रखकर खुदा के साथ हमें चलना है। Verse 1 says, I waited patiently for the Lord and He inclined to me and He heard my cry. पहला जो है मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी। I'm going to talk about three things about this verse 1. मैं जो है इस पहली आयत में से तीन चीजें बयान करूंगा। One is waiting for the Lord with patience. पहली चीज है मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी। Two, inclining. Inclining means to He came to me. और दूसरी जो चीज है कि खुदा सब्र में हमें उस मुसीबत को सामने करने की हिम्मत देता है। Third, He heard my cry. और जब हम खुदा के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो हमारी उस रोने को सुनता है। These are the three things I'm going to share with you in verse 1. और ये ही तीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ बयान करूंगा। First, I waited
for the Lord with patience? क्या आप खुदा के लिए सब्र और तहम्मुल से इंतजार करते हैं? This is the Psalm of David. ये जो ज़बूर है ये दाऊद नबी ने लिखा है। It's David who is saying, I waited for the Lord with patience. दाऊद नबी कहता है कि मैंने सब्र किया है खुदा में। We don't know how many years he waited for the Lord. Okay? We don't know how many years he waited for the Lord. हमें ये नहीं मालूम कि दाऊद नबी कितने सालों से खुदा का सब्र कर रहा था, इंतजार कर रहा था। What we know, he waited with patience. और एक ही चीज हमें पता है कि उसने खुदा पर ईमान रखते हुए खुदा के प्रेजेंस के लिए इंतजार किया। When we read this verse, it shows that he waited and he waited and he waited and kept on waiting. जब हम इस आयत को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो मुसलसल खुदा के लिए वेट कर रहा है, खुदा के जवाब के लिए वेट कर रहा है, खुदा के प्रेजेंस के लिए वेट कर रहा है अपनी जिंदगी में। He waited with patience. It means that he had hope on whom he was waiting. कि दाऊद नबी इंतजार कर रहा था, वो उसे पता था कि वो जिसका इंतजार कर रहा है वो हमेशा की जिंदगी है। He waited with patience. It means he had hope in God whom he has been waiting. कि उसे खुदा पर उम्मीद थी तो इसलिए वो खुदा पर सब्र और तहम्मुल से खुदा का इंतजार कर रहा था। In the waiting, it gave him a positive result. और जब उसने सब्र किया तो उसे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। Do you know that result? आपको पता है वो क्या है? It's point number 2. He inclined to him. He inclined to me. कि उसने सब्र किया और खुदा ने करीब से आकर उसकी फरियाद को सुना। When we come to the meaning of the verb inclining, it means like when you are talking with a person and a person brings his mouth on your ears and you want to listen, and just is telling you something. When inclining is like listen, come to you and you want to listen, bringing your ears on your mouth and listen to you carefully. कि जैसे For example, when you are talking to me, I can just come and listen. This is inclining. कि खुदा ने करीब से आकर उसने मेरी तरफ मिल होकर मेरी फरियाद सुनी। कि कहने का मतलब कि खुदा ने बहुत करीब से आकर दाऊद नबी की फरियाद को सुना। The result of patience was God came to him and listened. That is the result. उसका सब्र जो था कि खुदा मेरी फरियाद को सुने। Not only inclining, he heard his cry. सिर्फ खुदा ने उसकी फरियाद नहीं बल्कि उसके रोने को, उसके गिड़गिड़ाने को भी खुदा ने सुना। Comparing to our lifestyle in the everyday life, अगर हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन को देखें, something which is hard for us is to wait. कि हमें सब्र करने की जरूरत होती है। I don't know how many times I've been praying, but the problem is how long we want to be answered. कि मुझे नहीं पता आप कितनी दफा दुआ करते हैं, मगर जो मेन चीज है People, आप कितना सब्र करते हैं। Christians of today, they want to pray and get answer right away. कि कुछ क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं कि जब वो दुआ करते हैं उनकी दुआ के लिए मतलब मैंने जैसी दुआ की है वैसे ही मुझे वो चीज मिल जाए। But here David waited and waited and waited with patience.
मगर इधर हम देखते हैं ज़बूर 40 में कि दाऊद नबी सब्र से खुदा का इंतजार कर रहा था। क्योंकि हमारी दुआएं जो होती हैं वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। The result, God answered, God heard his prayer. आमीन। कि खुदा ने जब उसने खुदा पर सब्र, तहम्मुल और इंतजार रखा, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। I don't know what you are praying for. मुझे नहीं पता कि आप क्या दुआ करते हैं। Today I brought you the message telling you, please wait with patience. कि आज का जो पैगाम है, सब्र तहम्मुल से खुदा का इंतजार करें। And God is ready to hear you and answer your prayer. कि खुदा आपकी दुआ को सुनने को है, आपके गिड़गिड़ाने को सुनने को है, और वो आपकी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। God's time is perfect. God's जो खुदा का टाइम है वो हमेशा दुरुस्त होता है। He works the way he wants. खुदा अपने हिसाब से हमारी जिंदगी में काम करता है। That is what he's God. He's sovereign God. He's sovereign God. इसलिए वो हमारा जिंदा आसमानी बाप है जिसके हाथ में सारा इख्तियार है। What you will do is only to wait with patience. हमें सिर्फ खुदा पर सब्र करना है And believe in him that he will give the answer of your prayer. और खुदा पर ईमान रखना है। जब हम दुआ करते हैं, ये नहीं कि हमने दुआ की, आंखें खोली, कोई मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं हुई और छोड़ दो खुदा मेरी सुन ले, बल्कि हमने खुदा पर अपना पुख्ता ईमान रखना है, जैसे दाऊद नबी ने ईमान खुदा पर रखा है। Do you know how long I prayed for continuing my studies? आपको पता है कि मैंने कितनी दफा दुआ की है अपनी स्टडीज में? 5 years. 5 साल अपनी स्टडीज के लिए। I prayed in 2000, almost just 12 years that one, and God answered my prayer in 2018. कि पास्टर का कहने का मतलब है कि हम जब दुआ करते हैं उसमें 1 मिनट भी लग सकता है, उसमें 10 मिनट भी लग सकते हैं, उसमें 1 साल भी लग सकता है, मगर इन्होंने 5 साल दुआ की और खुदा के लिए सब्र किया कि खुदा एक दिन मेरी दुआ को जरूर सुनेगा। आमीन। The work of Christians is to pray continually. जो क्रिश्चियंस का काम है वो है ईमान से Then you wait with दुआ patience. और खुदा पर बस जो भी हमारी मुसीबतें या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं हम खुदा पर छोड़ दें, और जब खुदा का टाइम आएगा हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से दूर होगी। आमीन। Amen. We call it continued supplication, hoping that God will answer. हमें कंटिन्यू खुदा पर भरोसा, खुदा पर ईमान, सिंपल इज वी नीड टू ट्रस्ट इन गॉड। खुदा पर पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है। It's not easy to wait. ये कोई आसान चीज नहीं है इंतजार करना। There is a lady who told him, "Oh, Celestine, pray for me to get husband." Here in Korea. या कि कोई अगर मुझे बोलता है कि पास्टर सेलेस्टिन मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कोई अच्छा खावन मिल जाए। I said, "Okay, do you want husband?" मैंने कहा अच्छा आपको खावन चाहिए? I said like that as if I have many boys. Or I said, "When you get her?" I told her like that one. कि वो ऐसे कहती कि जैसे मेरे पीछे बहुत से लड़के हैं कि मैं उसे फौरन बोलूंगा जाओ इसके साथ शादी कर लो। We prayed after like 1 week. She told me, "Oh, I don't get it. I didn't see the answer." So, she called me. Hey, Celestine, we prayed and I did not get the answer. कि उन्होंने फोन किया और मुझसे बोला कि 1 हफ्ता हो गया है, दुआ की है, मगर मुझे कोई भी अभी तक जवाब नहीं मिला। When I told, "Please wait," she came to me. She told me, "Hey, let's meet. कि जब मैंने उन्हें बोला कि सब्र करें
और उन्होंने फोन किया, बोला कि नहीं आप मिले मेरे साथ। She was serious, telling me God did not answer this prayer. कि वो मुझे कहना चाह रही थी कि खुदा ने मेरी दुआ को नहीं सुना। I did not know what to tell her, but when we met, I told her, maybe God is just still bringing a good man for you. If He gives you the pari, the money will be not original. Please, where is the original one? कि मैंने उनसे बोला कि खुदा पर ईमान रखो और खुदा के टाइम के लिए इंतजार करो, क्योंकि जब खुदा आपको देगा तो वो आपको अच्छा हस्बैंड देगा। क्योंकि जब हम सब्र करते हैं तो हमें अच्छी चीजें मिलती हैं। जब हम जल्दी का करते हैं, जल्दी हर चीज खराब ही होती है। तो हमें खुदा पर सब्र करने की जरूरत है। आमीन। After 1 month, she called me again. फिर से 1 महीने के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की। I refused to go and meet her. और मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता। I made myself busy. और मैंने अपने आप को इतना मसरूफ किया You know, for us students, you have many excuses. कि हम स्टूडेंट हो तो एक बहुत से बहाने बना सकते I हैं। told her I have many homeworks, I have many things. It's not easy to come. No, I won't come. But I didn't have many things to do. और मैंने जस्ट उन्हें सिंपल बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपने ही बहुत काम होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। And I said, okay, keep on praying. Please be patient. और मैंने उन्हें बोला कि मैं दुआ कर रहा हूँ, सिर्फ सब्र रखें, खुदा पर ईमान रखें। I'm telling you this one because for us human beings, we want quick answers. ऐसे इंसान होते हुए हमें हमेशा जल्दी पड़ी रहती है और जल्दी हमेशा काम को बिगाड़ता है। And after like 5 months, she called me. I refused to pick up the phone because I knew the prayer request. और जब 5 महीने के बाद फिर से मुझे कॉल आई तो मैंने कॉल नहीं रिसीव की। मुझे पता था She called and called. I refused to pick up the phone. कि वो कंटिन्यू कॉल करती रही, मैंने रिफ्यूज की उसकी Later कॉल। on, she sent a message. God answered that prayer. और फिर उसने मुझे मैसेज किया I called her. कि खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है। I आमीन। called her. और मैंने उनको कॉल की। I said, God gives more than our expectations. कि जब हम खुदा पर सब्र करते हैं, खुदा हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमारे लिए करता है। आमीन। What He wanted you is to learn how to be patient. जो चाबी है सक्सेस की या खुदा से मांगने की, वो है सब्र। Now she's happy. I will not tell you that person. Some of you will know her. I will not tell you. कि आप शायद उन्हें जानते हो और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। What I want us to learn today is to be patient and wait for the Lord. आज जो हम सीख रहे हैं वो है सब्र और तहम्मुल। Any situation you are passing through, be patient and wait for the Lord. कोई भी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी या बड़ी, सिंपल खुदा पर ईमान रखें और खुदा पर उस सिचुएशन को छोड़ दें, क्योंकि जब खुदा का टाइम आएगा हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। आमीन। Let us go to verse 2. He drew me up from the pit of destruction, out of the mire pot, and set my feet upon a rock, making my steps secure. ज़बूर 40 उसकी दूसरी आयत, उसने मुझे होलनाक गहरे और दलदल के कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश क़याम की। आमीन। I'm going to talk about 4 points here. मैं इस आयत में से 4 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। 1, the pit of destruction.
pity of destruction. The first one, we'll talk about pity of destruction. Second, the mire bog. Mire bog is like a mire clay, or just water mixed with the sand, something like that. कि पहली चीज जो है कि खुदा ने मुझे कैसे मुसीबत में से निकाला और मैं दलदल में फंसा था और कैसे खुदा ने मुझे उसमें से निकाला। My feet upon the rock. और खुदा ने मेरे पाँव को चट्टान पर मजबूती से रखा। Fourth, making my steps secure. कि मैं जब चलता हूँ खुदा मेरी निगाहबानी करता है। When we read this verse 2, it shows us where David was waiting with patience from. जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि दाऊद नबी सब्र से खुदा का इंतजार कर रहा है। He was waiting from the pit of destruction. कि वो मुसीबतों में सब्र से पेशेंस से खुदा का इंतजार कर रहा था। Do you think it was easy? क्या ये आसान बात है? And when you read many versions, many Bible versions, some of verses are saying this pit of destruction, it's like graves where they bury dead people. It's like graves. कि जब हम इंतजार करते रहते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। But when we read Psalm 81 and 84, it shows hard situation. कि जब हम ज़बूर 28 और ज़्यादातर ज़बूर जो हम पढ़ते हैं बाइबल में से वो मुसीबत और सब्र सिखाती हैं, क्योंकि मुसीबत में हमें खुदा पर ईमान और खुदा के टाइम के लिए सब्र करने की ज़रूरत है। Verse 2 shows that David was waiting for the Lord in hard situation. कि जो दूसरी आयत है ज़बूर 40 की वो हमें बताती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे दाऊद नबी ने खुदा पर भरोसा रखा और कैसे खुदा का इंतजार किया। He did not complain. उसने कोई भी कंप्लेन या कोई भी नाराजगी खुदा के साथ नहीं रखी। What he did is to wait for the Lord with patience, knowing that, hoping that God will do something. कि हमें ईमान के साथ सब्र करना है और खुदा के टाइम के लिए इंतजार करना है। How about you in your situations? हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? Maybe when you face a hard situation, you face your eyes on your friends. कि जब हम किसी भी मुश्किल में हो तो हम अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं या उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। We are doing things in different way. कि हम कुछ चीजें अपने मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। Yeshka and Lydia, if they have a problem, they see their parents. They say, "Oh, I have this problem." They trust their parents that they will solve their problems. जैसे ऐशिका है और लिदिया है, अगर इन्हें कोई मसला होता है तो ये फौरन अपने माँ बाप के पास जाएंगे और इनके माँ बाप जो हैं वो इनकी मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। How about you if you are children of God? Do you see God or you see friends? कि हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हम पे कोई मुसीबत आती है, हम खुदा के पास जाएंगे कि हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे? Don't do like people of God. You should do like a child of God. कि हमें खुदा के लोगों की तरह नहीं बल्कि खुदा के बच्चों की तरह करना है। The people of God see their friends or their other people. जो खुदा के लोग हैं वो लोगों के पीछे भागते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, मगर जो खुदा के बच्चे हैं वो खुदा को अपना बाप मानते हैं और अपने बाप के पास
जाते हैं और अपनी इल्तिजाएं उनके आगे पेश करते हैं। But आमीन। children of God must seek God who has the power to solve all their problems. खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमें खुदा के पास जाना है। Let's focus on God. हमें अपनी आंखों को खुदा पर लगाना है। In all situations you are passing through. कोई भी मसला है, खुदा पर भरोसा रखें। Maybe this time, some of us here are still in this pit of destruction. कि अभी भी इस टाइम इस जगह पर कई लोग होंगे जो कई मुश्किलों का सामना या कई हालात उनकी जिंदगी में ऐसे हैं, फेस कर रहे हैं। They are praying and it seems like God is not listening to their prayer. कि वो दुआ कर रहे हैं मगर खुदा जल्दी सुन नहीं रहा। My message of today, please be patient. God will incline to you and hear your cry, your prayer. कि मेरा जो आज आपके लिए मैसेज है वो ये है कि दुआ करते रहें और खुदा पर भरोसा रखें। एक ना एक दिन खुदा आपकी उस मुसीबत को जरूर दूर करेगा। आमीन। David was not repeated. He was not only in a pit of destruction. He was also in Maibog. He was also in Maibog. Maibog. सिर्फ वो मुसीबत में नहीं बल्कि एक मुसीबत के गड्ढे में धंस गया था। In the bottom of the pit is where he was staying. The bottom, down. तो वो बहुत ही नीचे था। It means when he falls down this Maibog again. He had nowhere to stand. तो मतलब कि दाऊद नबी जो है वो ऐसा नीचे गिरा था कि उसको खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। It means he was in the problems and surrounded by the problems. I don't know how I can say. He was in the problems and surrounded by दाऊद नबी जो है the problems. ऐसी मुसीबतों से गिरा था कि वो निकल नहीं पा रहा था। But he knew one thing. पर उसे एक चीज मालूम थी। He knew to wait for the Lord with patience. उसे ये मालूम था कि अगर मैं खुदा के लिए वेट करूंगा, खुदा मेरी हर एक परेशानी मुसीबत दूर करेगा। That is the secret we must have as Christians. ये एक बड़ा सीक्रेट है जो हर एक क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है जानना। When God inclined and he heard his cry, everything was changed. जब खुदा ने